Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And yes, that's only reason why we have a very special email dedicated episode, because Premji's guidance has helped so many viewers out there that on popular demand, we had no choice, because you write into us, it's so many emails and some parts of your life are happy, some parts of your life are unhappy, and you want resolutions, quick remedies, and who else to give that to you but none other than Prem Jyotish ji. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेम जी पहली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम मिस मधुलता. हर डेट ऑफ बर्थ इज 16th of January 1969. Place of birth is Fiji Islands. Time of birth is, she says, around 3:30 in the morning. She's having some financial hardship because she's living on her own. She wants to know, should she sell her home, which is actually like an apartment? And if yes, what will be the best time for her to sell it? And should she start renting after that? She does not want to sell her only asset, which is what her apartment is, but she's saying that if there is any other solution for her to save money and have a roof over her head, what would it be? And she wants your help and guidance. देखिए मिसेस मधुलता, अगर आप 16 जनवरी 1969 इनका लॉटोका फिजी आइलैंड 3:30 AM का बर्थ है. इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन भी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है, जिसका लॉर्ड होता है मंगल, जो इनकी जन्मपत्री में 12th हाउस में बैठा हुआ, विच मेक्स हर मांगलिक टू. जन्मपत्री में राहु केतु में सभी प्लैनेट हैं, तो काल सर्प दोष भी है. और इनको राहु की दशा स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर मई से. अच्छा. मंगल का मित्र होता है राहु, लेकिन राहु शनि के साथ बैठा और अभी राहु की पोजीशन भी खराब है. तो जब 5वें स्थान में राहु हो तो आप एक फियर में आ जाते हैं, आप हमेशा नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइड में. एंड राहु पाइसिस में है इस वक्त इनकी जन्मपत्री में. वैसे ही राहु पाइसिस में बैठा हुआ है लगन में, और ट्रांजिट के अंदर भी राहु पाइसिस में. तो इनका टाइम जो है मई एंड तक बहुत ख़राब है. तो किसी तरह का भी कोई डिसीजन इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मई के बाद से इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और इनकी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है उसमें भी इनको पॉजिटिव आउटकम दिखना शुरू हो जाएगा, और शायद इनको अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So that's very good for her. But Premji, any remedies for her to sail through this time? देखिए, एक इनको काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए टेंपल में जाके, जिस दिन भी मंडे के दिन अमावस होती है, जिससे वो दोष खत्म हो जाए. एक इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में. उसको ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. राहु पीरियड है तो इनको एक 50 ग्राम का एलिफेंट लेना चाहिए, जिसकी ट्रंक ऊपर को, उसको एक ग्लास जार में गंगा जल डाल के और उसमें बंद करके बॉटल में उसको पूजा स्थान में या अपने रूम में रखें. और इनको ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान जी के पैरों में सिंदूर भी चढ़ाते रहना चाहिए, जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, don't take any hasty steps right now, only because your time will turn around beautifully after May. Don't be in a rush to sell the house, quit a job, take a loan, or do something. Just be very patient, because we understand times are tough for everybody. However, Premji recommends you need to start wearing a coral. Along with that, you need to do Hanumanji Chalisa on Tuesdays and Saturdays. Do Hanumanji ka tilak as well, because things are turning around for you. All you need to do is have patience. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए, देखिए, आपको फोकस अपने करियर ग्रोथ पे, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे करना चाहिए जो आपको मिलेंगी भी. थोड़ा माइंडफुल रहेगा अपने फाइनेंशियल चॉइसेस को लेके. थोड़ी सेविंग के बारे में भी सोचिए. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बैलेंस बना के रखिए एक्टिविटी में भी, और थोड़ा रेस्ट भी करिए. आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो जाएंगे अगर आप थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन करेंगे इस वीक के अंदर, और एम्ब्रेस करेंगे पर्सनल ग्रोथ को. किसी नए एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आएंगे. Taurus?
टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। पेशेंस बना के रखिए तभी सक्सेस मिलेगा। थोड़ी अटेंशन दीजिए अपने फाइनेंसिस को, अवॉइड करिएगा अननेसेसरी स्पेंडिंग को इस वीक के अंदर, और प्रायोरिटाइज़ करिए मेंटल और इमोशनल वेलबींग को भी। थोड़ा समय अपने फैमिली और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बिताइएगा। वो फोकस बना के रखिए सेल्फ केयर और मेंटेन करिए हेल्थी रूटीन अपनी लाइफ के अंदर। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए बहुत ही ग्रेट वीक है, जिससे इनिशिएट करेंगे आप अपने करियर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, जिससे आपको थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए इस चीज़ को लेके। एंड थोड़ी अटेंशन दीजिएगा अपनी फिजिकल हेल्थ को, थोड़ी एक्टिव रहिएगा, अपने आप को बना के रखिए। सोशलाइजिंग से नए कनेक्शन बनेंगे, आप थोड़ा खुश भी रहेंगे इस वीक के अंदर। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें एक्सप्लोर करिएगा, नई हॉबीज़ भी आप देखेंगे इस वीक के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए आपको फोकस अपने करियर पे बना के रखना है। थोड़ा डिटरमिन रहिएगा अपनी प्रोग्रेस को लेके, मैनेज करिएगा अपने फाइनेंसिस को वाइजली, अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव किसी तरह की भी चीज़ों को, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करिएगा। थोड़ा समय निकालिए, रिलैक्स करिए, फोकस बना के रखिए, मेंटल अपनी क्लैरिटी आएगी आपको लाइफ के अंदर। स्ट्रेंथन करिए अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीक के अंदर। आपके रिफ्लेक्ट करेंगे पर्सनल गोल, जाके आगे चल के आप उनके ऊपर काम भी करेंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक। दिस इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ आवर एपिसोड, so don't go too far, because when we come back after the break we have more emails. Could be a topic which could be discussing about a question related to that particular email. Along with that we have more horoscopes coming your way, so don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. Premji's taken his time out to be with us in the studio because he believes in guiding all the viewers who write into us, who believe in Premji. Premji talks about, a lot of solutions, remedies and guidance only because he reads your particular birth chart, because you have issues or troubles. So let's find out who sent in the next email on a very special email dedicated episode. और Premji, हमारी अगली email जो आई है, this is from Miss SR. Date of birth is Feb 19, 1975. Place of birth is Panipat, Haryana. Time of birth is 2:05 early morning. She wants to know more about her career and her job. Should she stay in her current job? And what does her career look like to you? Or she should move jobs or do something else? देखिए ऐसा, अगर आप 19 फरवरी 75 इनका पानीपत हरियाणा 2:05 AM का बर्थ है, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका जो मून साइन है वो टॉरस है, वृश्चिक लगन है और वो वृषभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है मंगल, राशि का लॉर्ड है शुक्र, और इनको गुरु की दशा चल रही है और जुपिटर में अभी सन का ट्रांजिट आया हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिशन माना जाता है। अगर गुरु में सूरज आ जाए और जुपिटर जो है इनकी जन्मपत्री में सन के साथ ही बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से बेसिकली नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है। और कई बार अगर आप लाइफ में जो अगर कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं अपने करियर को लेके, तो ये इनकी लाइफ का राइट टाइम है टू मेक, क्योंकि इस साल सितंबर तक का जुपिटर एंड सन का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू मेक एनी चेंजेस अपने करियर, जॉब चेंज करने में, या अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है इनको ये करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द विंडो वेयर इसमें इनको काफ़ी बड़ा जो है क्या कहते हैं लाइफ में सक्सेस मिल सकता है। So Premji, what would you recommend for her as remedies or something that could strengthen her stability in what she's doing? वेल देखिए, एक तो इनकी जन्मपत्री में चंद्र ग्रहण है, चंद्र और केतु साथ में है, तो 7th हाउस आपके पार्टनरशिप और रिलेशनशिप का भी होता है, चाहे वो आपकी पर्सनल है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है। तो चंद्र ग्रहण की वजह से लाइफ में जो इनको इनके जो काम करते हैं लोग, उनसे सपोर्ट नहीं या इग्नोरेंस मिलती है। मेहनत ये करेंगे तो कोई और फ़ायदा ले जाएगा उस चीज़ का, तो वो एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से स्ट्रगल रही है लाइफ में। एक तो इनको पुखराज पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, उसको थर्सडे के दिन पहने, जो लाइफ लॉन्ग पहन के रखना है।
चंद्र ग्रहण है तो लॉर्ड शिवा की पूजा करें, मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, जिससे जो है चंद्र ग्रहण जो है बेटर रहे। और मंडे के दिन या वेजिटेरियन है या उपवास करें तो काफ़ी बेनिफिट करेगा इनको लाइफ के अंदर। एंड द थर्ड थिंग, शी शुड ऑल्सो गो टू ए होमलेस शेल्टर एंड डोनेट फूड टू, क्योंकि गुरु दशा है तो अन्न दान करें थर्सडे के दिन ट्वाइस ए ईयर, तो जिससे लाइफ में काफ़ी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that you need to start wearing a pukhraj, making sure it's a good quality, untreated, unheated stone. It's supposed to be worn on Thursday, early morning. Premji has given you the timing. There's a small mantra that you can always find out on Premji's website. You need to stay vegetarian and try and stay vegetarian every Thursday, along with the other remedies that Premji has mentioned for you. Stay positive, because whatever job that you're in, whatever future you want for yourself will happen for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपका काम जो है, आपके कोलैबोरेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, पर्सनल एडवांसमेंट है, उसमें काफ़ी आपको चेंजेस दिखेंगे। कंसिडर करिएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। आप एंगेज रहेंगे एक्टिविटीज़ में, जिससे काफ़ी खुशी और फुलफिलमेंट रहेगी। आपके जो बॉन्ड्स हैं अपने पार्टनर्स और अपने रिलेशनशिप में और भी गहरे हो जाएंगे जब आप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ। आपके जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो आपकी आर्टिस्टिक जो परस्यूट्स हैं, वो आपको नई हॉबीज़ भी आप करेंगे इस वीक के अंदर। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो शाइन करेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी इस वीक के अंदर। कंसिडर लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर आप सेविंग के बारे में सोचेंगे इस वीक के अंदर। फोकस बनाइए हेल्थी हैबिट्स में, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर अपना खाने के ऊपर ध्यान रखिए। आप कोलैबोरेट करेंगे, जिससे आप अपने कोलीग्स के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस वीक के अंदर, पर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अपनी सेल्फ केयर के ऊपर भी थोड़ा फोकस बना के रखिए। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके रास्ते में आएंगी, तो थोड़ा फोकस बना के रखिएगा। वॉच करिएगा अपने फाइनेंसिस को, थोड़ा कंसिडर करिए, रिवाइज करिए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को, और प्रायोरिटाइज करिए अपनी सेल्फ केयर को, ताकि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करें, अपने मूड को ठीक करें। रिलेशनशिप में थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट करिए लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एडजस्ट करिए अपने प्लान्स को, अगर उनकी में ज़रूरत है करने के लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और अपनी पर्सनल पैशंस के ऊपर करना चाहिए इस वीक के अंदर। थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा, अपने पैसे को लेके जल्दी में रश मत करिएगा। आप अपनी हेल्थ को थोड़ा ठीक करिए, योगा करिए, माइंड को थोड़ा अलाइन करिए, एंगेज करेंगे सोशल एक्टिविटीज़ में, जिसमें काफ़ी खुशी और जॉय मिलेगा आपको। आपकी इमोशनल जो लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा ये वीक। Thank you, Premji. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to take your leave, because time now for yet another very small break. But when we come back from the break, we'll be talking more about the emails, and for the last 4 zodiac signs, it could be your email I read out soon. So don't go too far. We'll see you very shortly. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. Premji's taken his time out to be with us in the show today, because today is a very special email dedicated episode. Before we went on to the break, Premji was telling some of the viewers who wrote into us what was not aligned properly as per planetary positions, what was harming you, what is it the solution that Premji gave you. But time now for us to take who sent in the next email. So let's find out who that person is, or Premji. और प्रेम जी, अगली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम MD, जेंडर इज मेल, डेट ऑफ बर्थ इज November 30th, 1999, प्लेस ऑफ बर्थ इज Chicago, टाइम ऑफ बर्थ इज 7:35 in the evening. This is a concerned parent who wants to know about the son's life. After he gets married, what would it be like? He has just finished his degree and they want him to study further like a CPA, but he's not ready at this time, they feel. So how will his work life be? How will his married life be, and how will he do overall? They need your support and guidance. देखिए मिस्टर MD, अगर आप 30 नवंबर 1999 शिकागो 7:35 PM का बर्थ है, इनका कैंसर राइजिंग है और मून साइन जो है इनका लियो है।
कर्क लगन है और सिंह राशि है इनकी। कर्क लगन का लॉर्ड होता है बेसिकली चंद्र, एंड राशि का जो लॉर्ड है इनका सूरज है, और इनको राहु की दशा चल रही है। एंड राहु जो है ऑपोजिट प्लैनेट है मून का। एंड करियर के लिए तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता, बिकॉज राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है। वहाँ पे मंगल और केतु भी हैं, तो मार्स में एक में मांगलिक और राहु की दृष्टि पड़े तो आपको डिले करता है मैरिड लाइफ के अंदर। राइट। मून जो जुड़ा हुआ है फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो ये फाइनेंस में हैं। और अभी इन्होंने क्या कहते हैं CPA की स्टडी नहीं करी है जो इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो इनका स्टार्ट हो जाएगा मार्च 15 के बाद से इस साल, क्योंकि राहु गुरु में एंटर करेगा, विच इज़ ए गुड टाइम फॉर द एजुकेशन। बट एट द सेम टाइम राहु इज़ ऑल्सो बेसिकली ब्लॉकिंग योर पर्सनल लाइफ एज वेल टू। So Prem ji, what are the remedies and guidance and solutions for her? एक इनको जो है, एक तो इनके लिए जो एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहनाया जाए। और लॉर्ड शिवा की पूजा की जाए मंडे के दिन। शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, या वेजिटेरियन रहे उस दिन, या फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, तो वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। और एक इनका तुलसी विवाह करना चाहिए टेंपल में जाके, ताकि राहु और जो मंगल का जो इम्पैक्ट है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। जैसे ये सब रेमेडीज़ कर देंगे तो फिर इनके शादी के जो योग बनने शुरू हो जाएंगे, एंड करियर इनका बहुत फ्लरिश करेगा, क्योंकि जैसे ही राहु गुरु में जाएगा मार्च एंड से, तो इनकी लाइफ में करियर फ्रंट पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। Thank you, Prem ji. So like Prem ji is advising you that your son will do phenomenally very well. As a parent, I can understand, you're very worried about his studies, his health, his future. He will also have a very beautiful married life, but he needs to do a Tulsi Vivah before he gets married. Pandit ji knows the ritual to do that. But I just have a question from Prem ji about your son. Prem ji, you mentioned he needs to do Tulsi Vivah. Why does he need to do a Tulsi Vivah, and what would be a cutoff age for him to do that, ceremony? Is it like after 30 he doesn't need to do it, or if he gets married at 35 he may need to do it? Like, what would you give it as a time frame, and why does he need to do Tulsi Vivah? Because the reason is because देखिए मांगलिक तो आउट ऑफ 100 में से 80 लोग होते हैं, राइट? मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, बिकॉज मार्स इज एनर्जी, राइट? इससे कनेक्शन बिटवीन टू फैमिलीज, बच्चे, हेल्थ, ग्रोथ, वो सब चीज़ों को देखता है। ये मांगलिक हैं पूरे, एंड केतु भी है 7वें स्थान में। बट राहु लगन में जो बैठा हुआ है इनकी जन्मपत्री में, अभी राहु दशा इनकी में 16-17 साल बाकी हैं। अच्छा। एंड दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ द दशा। तो राहु क्या करता है जी, आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है रिलेशनशिप में, या फेलियर, या मल्टीपल मैरिजेस कराता है। और मांगलिक भी बैठा हुआ, तो कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिसमें वी डोंट केयर कि व्हेन यू आर इन लव इट्स अ वन वे ट्रैक, राइट? इट्स ए फीलिंग बिटवीन टू ह्यूमंस, एंड उसमें आप स्टार्स वार सब नहीं दिखता, you're blinded, you are blinded in that too. So in order to counter that, तो ये क्या कहते हैं, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ना आए राहु का इम्पैक्ट एंड मांगलिक का, इसीलिए तुलसी विवाह इनको करते रहना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो वहीं खत्म हो जाए, सो ही कैन फाइंड द राइट पर्सन। Wonderful, that's very good information. और दोस्तों, वक्त आ गया है for us to understand from Prem ji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem ji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस अपनी होम लाइफ और डोमेस्टिक मैटर्स के ऊपर करना चाहिए। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, पैसे को लेके ज़्यादा खर्चा मत करिएगा। हेल्थ के ऊपर फोकस बना के रखिए, रेगुलर रूटीन में चीज़ें करिए। काम के ऊपर जो कम्युनिकेशन है अपनी फैमिली और सब लोगों के साथ, थोड़ा उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। थोड़ा टाइम लीजिए, रिचार्ज करिए, अवॉइड करिएगा ओवर अपने आप को, ज़्यादा काम में अपने आप को एक्सर्ट मत करिएगा। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, अपना कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर करिए, खास करके अपने काम से रिलेटेड मैटर को। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, थोड़ी उसके ऊपर फोकस बना के रखिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, एनर्जी बूस्ट रहेगी, और आपके रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएंगे अगर आप ऑनेस्ट एंड ओपन कन्वर्सेशन करेंगे। ऑर्गेनाइज करके रखिए और फोकस बना के रखिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी। Aquarius?
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, आपका फोकस जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में होना चाहिए। आप इवेल्युएट करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको आगे स्टेप लेके जाएगा अगर आपको ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बैलेंस बना के रखिए काम और रिलैक्सेशन में। रिलेशनशिप में थोड़े फोकस की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा और आपको जो है अपने कनेक्शंस को बेटर करना है। आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पर्सनल वैल्यू पे, एडजस्ट करेंगे अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली उसके साथ। And Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपका फोकस पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होना चाहिए। क्रिएटिव एनर्जी इतनी हाई रहेगी कि आप इंटेलेक्चुअल जो है चीज़ें काफ़ी करेंगे। थोड़ी अटेंशन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी दीजिएगा। आपके रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएंगे अगर आप थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। आप महसूस करेंगे काफ़ी कॉन्फिडेंट और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आप लोगों के सामने। Thank you, Premji. You came to the show, you took out your time, and you made all the viewers understand what exactly was going on in their life and how important it is for them to do the remedies that Premji tells you. Premji reads out your horoscope, meaning it is your remedy. You need to do that. It may sound similar as your cousin, sister, or a brother, or even a parent, or very similar birth dates and very similar issues, but that is not the fact. You need to follow what Premji tells only you on the show because that's what he's reading your birth chart. However, if you want your horoscope, your business partner, or any other issue that you may be facing in your life and you want it read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.